We are starting with illustration 4.58, that is on page number 114 of your books. Quickly, let's do them. आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में बता रखा है illustration 4.58. Let's quickly read through the question. Mrs. Mathur is an employee of a private college in Muradabad. Right? आपको क्वेश्चन में बता दिया मुरादाबाद जिसका पॉपुलेशन 10 लाख है. राइट तो अगर RFA है तो हम यहाँ पे 7.5% लेंगे. राइट which is not registered as a charitable trust with the income tax department. She is in the grade of 29,800, 33,000, 1,200 and 39,000 since 1/1/2020. She gets 4,000 per month as Diana's allowance and CCA, City Compensatory Allowance, 200 per month. She has been provided with a furnished accommodation by the college. The college is not the owner of this house. That means the rental value of the house is 5,000 per month. Population not required. 15% of the salary or the rent paid, whichever is lower. Furniture has been provided costing 8,000. That means 8,000 का 10% हम ले लेंगे. She has been given the car of a capacity of 1.4 liters, which in addition to the college work is used by her for private purposes. The driver's remuneration and all the expenses relating to the use of the car is borne by the college. 1.4 liters है 1.4 liters, that means it's going to be 1,800, and driver भी है, that means it's going to be 900 per month. She has been provided with the facility of a gardener, watchman, servant, who are paid by the college 300 per month each. So 300 into 12 for all the cases. She contributes 10% of her pay as a statutory provident fund, SPF में provide करते हैं, to which the college also contributes 10%. She purchased books for her subject of 2,000 and paid employment tax 500 during the financial year. Now the employment tax is paid by her, so it will be provided as a deduction as we discussed in the previous class. Her salary becomes due on the first day of the next month. Determine her income under the head salary for the assessment year. 22-23, assuming Mrs. Mathur do not opt for 11 BAC and opts under 115 BAC. तो अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे हमें निकाला है इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम निकाल लेते हैं. Of Mrs. Mathur. Yes, so I'm going to draw a table here that will be for opted and not opted, 2 columns. ओके सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मुझे वर्किंग नोट 1 में सबसे पहले तो क्योंकि पे ग्रेड दे रखा है तो मुझे यहाँ पर बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी सर, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/2020 टू 31/12/21 मेरी सैलरी हो जाएगी 29,000. सर 1/1/21 से 31/12/22 मेरी सैलरी हो जाएगी 29,800 एंड 1/1/22 से 31/12/23 मेरी सैलरी हो जाएगी 30,600. आप देख सकते हैं दीज आर द 2 आइटम्स जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दिस फिगर एंड दिस फिगर. सो मेरे लिए 1 अप्रैल 21 से 31 दिसंबर 21 सॉरी 22 हाँ ठीक तो करा था.
दिस इज कैलेंडर ईयर्स है ना, तो सेम। चलिए, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे लिए सैलरी जो हो जाएगी, इट विल बी 29,800 फॉर 10 मंथ्स। सर यहाँ पे 10 मंथ्स क्यों आ गया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा आपको क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है दैट हर सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आपको देख सकते हो लास्ट लाइन में आपको एक चीज़ दे रखा है दैट हर सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। दैट मीन्स मेरी जो अप्रैल की सैलरी है वो फर्स्ट मई को ड्यू होगी। सिमिलरली मई की सैलरी जो है वो फर्स्ट जून को होगी। ऐसी बेटा दिसंबर की जो सैलरी है वो फर्स्ट जनवरी को होगी। सर मार्च की जो सैलरी है वो होगी फर्स्ट अप्रैल को, राइट। तो अगर आप देखेंगे मेरी 29,800 से सैलरी जो है वो 10 मंथ्स के लिए होगी। जैन की फेबररी फेब में होगी, फेब की मार्च में होगी, मार्च की अप्रैल में होगी। दैट मीन्स जो मार्च मंथ की सैलरी है वो मेरे को अप्रैल में मिलेगी, है ना। इसीलिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जाएगी वो भी अकॉर्डिंगली की जाएगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 29,800 इंटू 10, दैट्स 2,98,000 and 30,600 into 2, that's 61,200। मेरे पास टोटल सैलरी आ गई 3,59,200। दिस इज़ माई बेसिक सैलरी फॉर बोथ द केसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर मैंने यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 2 क्यों लिया? बेटा क्योंकि माई सैलरी इज़ गेटिंग ड्यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे, तो इसीलिए मेरी जो मार्च की सैलरी है वो फर्स्ट अप्रैल को ड्यू हो रही होगी। दैट मीन्स एज पर द न्यू स्लैब रेट, ये जो मेरा नया रेट है इसके हिसाब से मुझे केवल जनवरी एंड फेबररी मंथ की सैलरी मिली है, मार्च मंथ की सैलरी नहीं मिली है। सिमिलरली सर प्रीवियस ईयर जब हम पिछले साल में गए थे तो मार्च महीने की जो सैलरी थी वो मुझे अप्रैल में मिली होगी, तो मेरा जो सैलरी चल रहा है वो नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो रहा है, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली मेरे लिए पुराना रेट पे सैलरी कैलकुलेट हो रहा है। तो हैंस पुराने रेट पे इसलिए मैंने 10 मंथ्स लिया और न्यू रेट पे मैंने इसलिए 2 मंथ्स लिया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमारा बेसिक सैलरी It still doesn't make sense क्योंकि महीने में उतनी है तो how does it matter? It's just a day later. Beta, it's a day later, but since the money is getting credited in your account on the next day, so as per the income tax rules आप जो टैक्स लगाते हो वो केवल उसी इनकम पे लगाते हो जो 31 मार्च 2022 तक रिसीव हुई है। तो सिंस द सैलरी इज बीइंग रिसीव्ड बाय यू ऑन 1 April 22, नॉट ऑन 31 मार्च 22, सो अब वो जो 1 April वाली इनकम है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर में चार्ज हो जाएगी। सर सिमिलरली जब हमें मार्च 21 की जो सैलरी मिली थी वो भी हमें अप्रैल 21 में मिली थी, तो इसीलिए हमने उसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में चार्ज किया, ना कि 2021 में। गॉट इट? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आई विल शो यू विद अ टाइम लाइन हियर दैट शी स्टार्टेड ज्वाइनिंग ऑन 1 January 20। ठीक है बेटा, ऑन 31 March 2020 her financial year closed, then on 31 March 21 her financial year closed। बेटा यहाँ पर मार्च मंथ की जो सैलरी थी वो उसे मिली अप्रैल मंथ में, ठीक है ना। तो बेटा आप देख सकते हो 2021 में भी जो मार्च मंथ की सैलरी थी वो रिसीव तो अप्रैल में हुई ना, राइट। तो आपने यहाँ पे अप्रैल की जो सैलरी है वो मार्च में मई में मिली, मई की सैलरी। सिमिलरली यहाँ पर जो मार्च की सैलरी थी वो अप्रैल में मिली, तो वो अब नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी 22-23। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कैलकुलेशन में इम्पैक्ट पड़ गया, क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को मेरा अमाउंट इंक्रीमेंट आ जाता है, मेरे को इंक्रीमेंट आ जाता है, तो इसीलिए जो दिसंबर की सैलरी मुझे जनवरी में मिली वो एक्चुअली में ओल्ड रेट पे मिली, है ना। और जो जैन की मुझे सैलरी मिली वो मुझे न्यू रेट पे मिली, उसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन
डिफरेंस आ जाता है। ओके चलिए, ओके सर। दिस इज़ गोइंग टू बी 3,59,200। इस क्वेश्चन में यही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, अदरवाइज तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। 3,59,200, 3,59,200। आपको क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस दे रखा है, दैट इज़ गिवन टू यू एज 4,000 per month. 4,000 into 12, that gives you 48,000, taxable in all the both cases. नेक्स्ट आपको दे रखा है CCA, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, दैट इज़ 200 पर मंथ, दैट इज़ 2,400, टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट सर आपको नेक्स्ट चीज़ दे रखी है उन्होंने RFA। RFA के केस में हमें यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अगेन। RFA के केस में देख सकते हैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। RFA के केस में यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? in case of RFA it's going to be a quite a simple thing that मेरा जो amount of RFA है, it is going to be 15% of salary or rent received, rent paid, sorry not received, or rent paid, whichever is lower, इन दोनों में से लोअर लिया जाएगा। सर यहाँ पे हमारे लिए सैलरी क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी बेसिक। अगेन बेटा इस क्वेश्चन में मुझे डियरनेस अलाउंस के साथ में आई हैव नॉट बीन गिवन दैट दिस इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दिस। CCA एक अलाउंस है तो उसका अमाउंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर अलाउंस गिवन टू अस, तो आप देख सकते हो मेरे लिए यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 359,200 प्लस 2,400, so this gives me an amount of 361,600, 361,600। सो मेरे पास पहला पॉइंट आ गया 15% ऑफ 361,600 और 5,000 into 12, विच एवर इज लोअर। So this is going to be 54,240 and ठीक करा ना मैंने? $361,600 का 15%, 54,240 प्लस या फिर 60,000। तो अगर आप देख सकते हैं इसमें से मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 54,240। राइट हम इसमें फर्निशिंग्स ऐड करना भूल गए हैं, तो फर्निशिंग्स में यहाँ पे अलग भी कर सकता हूँ। इट्स गोइंग टू बी 10% ऑफ 8,000, दैट्स गोइंग टू बी 800, टैक्सेबल इन बोथ द केसेस। सर नेक्स्ट आप देख सकते हैं मोटर कार। मोटर कार के केस में मैंने आपको पहले बताया था 1,800 प्लस 900 इंटू 12, that comes out to be 32,400, again taxable in both the cases। नेक्स्ट आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? गार्डनर, वॉचमैन एंड आपको और क्या दे रखा है? सर्वेंट। सर तीनों को हम दे रहे हैं 300 पर मंथ, that's going to be 3,600, 3,600, 3,600। राइट इसके अलावा आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। Wait for 2 minutes. या एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन So could you show the RFP working note, please? या
Okay, sir. चलो, तो एज यू नो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हमारा जो अमाउंट होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों एग्जाम्प्ट होता है, तो इसलिए वो हमारे यहाँ पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास और कुछ है नहीं, मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकल आएगी, उसमें से मैं माइनस कर दूँगा डिडक्शंस। एज यू नो यहाँ पे डिडक्शन कितना होगा सर, एक तो होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा होने वाला है प्रोफेशनल टैक्स। इफ़ यू कैन रिमेंबर, हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे रखा है सर। दोनों ही केसेस में जो डिडक्शंस मिलेंगी वो हमें केवल नॉन ऑप्टेड फॉर 115 BAC में मिलेगा 50,000 and 500, राइट। हमें यहाँ पे इनकम अंडर हेड सैलरी मिल जाएगी। हम इसका बस अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, देन वी आर डन। तो इन सारे अमाउंट सेम है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गया 507840। minus 50,500, this comes out to be 457,340। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। A simple question from the concept, nothing much to add up, right? Illustration 4.59 we have already done, right? We got to do now 4.60. So 1 second. Well, RFL में you've taken 15% of 361500. Shouldn't it be 361600? 361,600, वो 600 ही है एक्चुअली, लिखने में गड़बड़ हो गया, यहाँ पर कैलकुलेशन 6 का ही है। Okay. कभी कभी देखो ये गड़बड़ भी हो जाती है, ऊपर से कॉपी करने में आंसर में गड़बड़ी हो जाती है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कैन वी मूव हेड, राइट सिमरन, इज इट क्लियर? Suggest या can we start ahead? Can we move ahead? Meher, Yan, Riddhi, Simran? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. चलिए, illustration 4.60, that is on page number 117। देखिए अब इस टाइप की क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा एग्ज़ाम में आने का चांसेस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में स्पेसिफिकली है ना। क्यों? देखो यहाँ पे आपको 2 एम्प्लॉयर्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू, है ना, विच वन इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है बेटा, सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, जिस पर्टिकुलर ऑप्शन में है ना मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी, आई रिपीट माई सेल्फ, जिस पर्टिकुलर पैकेज में मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी वही ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, राइट। दैट इज़ एन ऑप्शन दैट इज़ बेटर फॉर मी, राइट। सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स हियर, राइट। आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है दैट एक्स एक डायरेक्टर है ABC प्राइवेट लिमिटेड में, पुणे इज़ द प्लेस, एंड उनके पास में 2 पर्टिकुलर पैकेजेस रिसीव हुए हैं, मतलब ही कैन ऑप्ट फॉर 2 पर्टिकुलर पैकेजेस हियर। फर्स्ट पैकेज, दोनों ही पैकेजेस में हमारा जो बेसिक पे है वो सेम है, जो बेसिक पे है इट्स द सेम 5,52,000। सर कन्वेंस अलाउंस दे रखा है, दूसरे में हमें मोटर कार फैसिलिटी दे रखी है फॉर प्राइवेट यूज़ ऑफ मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स, जिसका वैल्यू 36,000 दे रखा है। सर एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, वहाँ पे क्लब फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है।
सर हमें चिल्ड्रन, क्योंकि ये हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड है, देखो नाम से पढ़ा, तो यहाँ पर हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखें। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रखा है फॉर 2 चिल्ड्रन एंड फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दे रखी है रन बाय द एम्प्लॉयर फॉर चिल्ड्रन, है ना, विच इज़ वैल्यूड एट 19,400। नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस जो है वो हमें प्रोवाइड किया हुआ है, दोनों का वैल्यू सेम है, राइट। जिसमें फेयर विद फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस इन पुणे, राइट, with fair rental value 1,20,000. Which of the two packages should X opt for on the assumption that both employer and employee will contribute 20% towards the basic pay towards the unrecognized provident fund? Now if you remember, unrecognized provident fund में क्या होता था सर, हमारे लिए जब हम मनी पे करते हैं तब हमें कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, लेकिन जब हमें अमाउंट रिसीव होता है एट दैट टाइम हमारे लिए अमाउंट टैक्सेबल है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा, तो हैंस नो प्रॉब्लम्स। सर आपको क्वेश्चन में बोला है दैट पुणे का पॉपुलेशन 25 लाख्स है, इज़ मोर देन 25 लाख्स, दैट मीन्स हम, क्योंकि दिस हाउस इज़ ओन्ड बाय द कंपनी, सो हम यहाँ पे 15% ऑफ द सैलरी यहाँ पर ले लेंगे, है ना, प्लस अलाउंसेस। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पर पहले पैकेज नंबर 1 का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू डू कैलकुलेशन 2 डिफरेंट कैलकुलेशंस हियर। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, Also, हाँ जी। what is club facility? बेटा क्लब फैसिलिटी वाज अ परक्यूजिट ना, जब हमें क्लब में मेंबरशिप लेने का हमें एक परक्यूजिट मिलता था टैक्सेबल, मतलब वो टैक्सेबल होता था कि कंपनी ने हमारे लिए एम्प्लॉई के लिए पर्सनल कोई एक्सपेंस पे करा, पेड बाय द कंपनी, बट द बेनिफिट वाज ऑफ द एम्प्लॉई। कोई एग्जाम्पशन नहीं होता ना इसमें? नहीं, तो इसमें कोई एग्जाम्पशन और नहीं है, deduction. नो देयर इज नो एग्जाम्पशन, राइट। बेटा हमें यहाँ पर दोनों कैलकुलेशंस करना है, व्हेन ही हैज़ ऑप्टेड फॉर 115 BAC एंड व्हेन ही हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। तो आप देख सकते हो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस हमारे लिए जो कैलकुलेशन है वो होने वाला है डबल, ठीक है ना, और इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अगर आप देखेंगे, मैं इसमें सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मेरे लिए बेसिक पे, फर्स्ट वही है ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे लिए वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पैकेज 1, तो मैं केवल फर्स्ट वाला उसके बारे में बात करूँगा। सर हमें बता दी बेसिक सैलरी है 5,52,000 इन बोथ द केसेस, राइट। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस है। सर कन्वेंस अलाउंस पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं होती कन्वेंस अलाउंस में। Sir, sorry, one more. यस, इसमें are we calculating the total salary or just the income? जस्ट टोटल सैलरी बेटा, कैलकुलेटिंग द टोटल सैलरी और इनकम इज़ द सेम थिंग नाउ, अभी के लिए फॉर यू, अभी के लिए फॉर यू, है ना, क्योंकि अभी तक हमने कोई और हेड में इनकम निकालना सीखा नहीं है, राइट। मोटर कार हमारा सेकंड में है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एज यू नो एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्या होता है, इज इट टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? इट इज़ टैक्सेबल, बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इट विल गेट एग्जेम्प्ट, इट विल गेट डिडक्टेड। देन वी हैव, यू कैन सी हियर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर पैकेज 1, राइट। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे मेरे पास में डिडक्शन मिल जाएगा, है ना। सर वो कितना मिल जाएगा, 19,400 माइनस 2,400। सर देखो मैंने अब यहाँ पे अमाउंट थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया, है ना, यहाँ पे मैंने अब अमाउंट डायरेक्टली लिख दिया। 2,400 कैसे आया, आई होप अब आपको पता होगा, 100 इंटू 12 इंटू 2, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 17,000। आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसके बाद में अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट मुझे क्या मिला है, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए। सर इट इज़ गोइंग टू बी 15% ऑफ सैलरी, और सर सैलरी कितना होगा, 552
552,000 plus 36,000 plus 72,000 plus 19,400 का 15%, which will come out to be 101,910. सर इसमें भी अलग अलग अमाउंट आएंगे ना RFA की? यस, इसमें अलग अलग अमाउंट आएंगी ऑफ 6,79,400. That's going to be 101,910. सर नेक्स्ट वाले केस में आएगा 15% ऑफ 552 plus 36 plus 72 plus 17. That's going to be 677. So this is going to be 101,550. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दें यहाँ तक, राइट अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरी हो जाएगी क्योंकि देयर इज़ नो मोर डिडक्शंस गिवन, राइट अगर आप देख सकते हो इसके बाद में हमें अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड दे रखा है जिसका हमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होता, ठीक है आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे निकाल लिया ग्रॉस सैलरी, मेरा यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कितना आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 679,400 plus 101,910. That's going to be 781,310. This is going to be 778,550. बेटा यहाँ पे मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, नॉट दिस इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे नील, यहाँ पे 50,000, 7,28,550, 7,81,310. आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल शुड बी वेल, राइट सर अगर आप देखेंगे मेरे लिए नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ Sir, could you just wait for a minute, please? अब हम पैकेज 2 का कैलकुलेशन करेंगे, राइट अभी देखो मैंने अभी तक कैलकुलेशन किया पैकेज 1 का, अब हम कैलकुलेशन करेंगे पैकेज 2 का. Yes sir, you can continue. या चलिए, सो यू कैन सी हियर पैकेज 2 में अगेन बेसिक सैलरी इज द सेम, राइट एज यू नो, ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड में, ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लिए बेसिक सैलरी सेम है, बेसिक सैलरी इज गोइंग टू बी 5,52,000, 5,52,000. सर आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव मोटर कार अलाउंस हियर. सर आप देख सकते हैं मोटर कार क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट यूज़ के लिए है, राइट देयर इज़ नो ऑफिशियल यूज़, तो द एंटायर अमाउंट पेड बाय द कंपनी विल बी टैक्सेबल, इट विल बी अ टैक्सेबल परक्विजिट, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल पर्पस नहीं है. अगर ऑफिशियल पर्पस होता तो हम यहाँ पे अमाउंट वही फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं, हमें अगेन CC भी मैंशनड होता, ठीक है. अगर आप देख सकते हैं इसके बाद में मुझे दे रखा है क्लब फैसिलिटी, है ना, क्लब फैसिलिटी भी हमारा वैल्यूड है 172,000 पे, जो एज इट इज़ हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, इस पर हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी बेटा मोटर कार में अगर हमें यहाँ पर बता ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़, ऑफिशियल एंड प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए यूज़ करना होता तो हमें ये CC मेंशन करता कि कार का CC कितना है, 1.6 लीटर्स या फिर 1.6 लीटर से ज़्यादा, तो हम उसमें फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं 1,800 या 2,400 जो अभी तक लेते आ रहे थे. लेकिन सिंस दिस कार इज़ यूज्ड ओनली फॉर द प्राइवेट पर्पस, right, there was no official use of it, so 100% of the amount, whatever the amount the company has spent, will be taxable in the hands of the employee. And so this is charged on a monthly basis, right? No, this is the entire amount हमें given है, 36,000 ये amount given है, लेकिन जो हम नॉर्मली मोटर कार में अमाउंट निकालते हैं दैट इज़ 1,800 या 2,400, वो पर मंथ बेसिस पे होता है.
हाँ मैं उसी की बात कर हाँ रही हाँ, हूँ। वो ओके पर सर, मंथ बेसिस पे होता ओके सर। है, राइट? ओके, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मुझे यहाँ पे फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिल रहा है। बेटा अगर आप याद करेंगे फ्री एजुकेशन फैसिलिटी के केस में हमें बताया गया था कि इफ़ द अमाउंट इज़ अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड देन द अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। तो अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है 19,400 फॉर 2 चिल्ड्रन, राइट? तो अगर आप देखेंगे 1000 इंटू 12 इंटू 2 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 24,000, राइट? एंड ये हमारा अमाउंट यहाँ पर एग्जेम्प्ट आ जाएगा क्योंकि 24,000 इज मोर देन 19,400। आई होप आई एम क्लियर, राइट? इसके बाद में अगर आप देखेंगे RFA कैलकुलेशन होगा, दैट वुड बी 15%। सर पहले केस में, दोनों ही केसेस में हमारे लिए 15% ऑफ 5,52,000 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके अलावा और कोई हमें अलाउंस नहीं दे रखा। तो इट इज़ गोइंग टू बी 82,800। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, मेरी ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी? 5,52,000, 36,000, 72,000, 82,800, 742,800 अगेन 742,800। सर यहाँ पर हम डिडक्शन ले देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे लिए मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलेगा कितना? 50,000, और वो केवल हमें 115 BAC वाले नॉट ऑप्टेड वाले में मिलेगा, है ना? इसमें नहीं मिलेगा। तो हैंस यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा 742,800 एंड यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 692,800। सर हाँ जी, सर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी में इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर कि 2 चाइल्ड के लिए है, सो हैव वी जस्ट अज्यूम्ड इट बिकॉज़ सीईए में 2 चाइल्ड है। यस दे हैव अज्यूम्ड इट बिकॉज CEA में 2 चाइल्ड है तो मतलब उसके 2 ही बच्चे होंगे ना। तो डिपेंड्स ऑन सीईए होंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा कि अलग-अलग आएंगे। नो, या तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेगा, या फिर अब देखो इस क्वेश्चन में बेटर अजम्पशन क्या है, जब वो CEA 2 चाइल्ड के लिए कैलकुलेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली एजुकेशन फैसिलिटी भी दोनों बच्चे के लिए लेगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि एक का डिसीजन ले लेगा कि एक बंदा पढ़ेगा, एक बच्चा पढ़ेगा, एक बच्चा नहीं पढ़ेगा, या राइट? यस चलो, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए कम सैलरी किस में आ रही है? द लीस्ट सैलरी इज कमिंग आउट टू बी हियर अंडर पैकेज 2 नॉट ऑप्टेड फॉर, राइट? सो ही शुड ऑप्ट फॉर, Mr. X should opt for package 2. सर इसमें तो टोटल सैलरी निकाली, इसमें टैक्स एग्जेम्पशन वाला थोड़ी था। वी हैड टू give him the better option, तो in this case shouldn't we give him जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी आ रही है? नहीं बेटा, जिसमें हमारा सबसे कम टैक्सेबल सैलरी होगा वो बेनिफिशियल होगा ना एम्प्लॉय के लिए। बट इसमें तो we are calculating your total income salary. वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम। सी, अगर आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव से सोचोगे द हायर इज़ बेटर, राइट? द हायर इज़ बेटर। बट अगर हम नॉर्मल पर्सपेक्टिव को छोड़कर हम केवल इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि सर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए देखो फैसिलिटीज़ दोनों जगह सेम सेम मिल रही हैं। the benefits that the amount benefits that I am receiving in both the packages is same, है ना? अगर आप देखो वहाँ पे भी कन्वेंस 36 का मिल रहा है, यहाँ पे भी 36 का मिल रहा है बेटा, वहाँ पे भी 72 का मिल रहा है, यहाँ पे भी 72 का मिल रहा है, वहाँ पे भी 19,400 का मिल रहा है, यहाँ पे भी 19,400 का मिल रहा है। द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस इन अलाउंस एंड perquisite.
सो बिकॉज परक्यूजिट लेने में ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज वहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल सैलरी है वो कम हो रही है ना, क्योंकि मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, राइट और ये टैक्स कौन पे करेगा बेटा, एम्प्लॉय पे करेगा ना। अब यूजुअली वो TDS के बेसिस में कंपनी पे करके काम कर देती है, TDS काट देती है कंपनी, लेकिन एक्चुअली में तो है तो पेमेंट किसका, एम्प्लॉई का ना, ये कोई एम्प्लॉयर का पेमेंट थोड़ी ना है। तो एम्प्लॉय यही चाहेगा ना कि भाई तो मुझे अलाउंस की जगह परक्यूजिट्स दो। ओके सर। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। राइट, यहाँ पर यूजुअली बच्चे जो हैं गड़बड़ी ये कर देते हैं कि वो कैलकुलेशन तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंक्लूजन में गड़बड़ी कर देते हैं। वो यही माइंड से काम करते हैं कि द हायर द बेटर, है ना। वैसी सिचुएशन में वो यहाँ पर सेलेक्ट कर कर आते हैं ये वाला अमाउंट 781,310, राइट। तो यहाँ पर यही गड़बड़ी करते हैं बच्चे। चलिए, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्स वेल। एंड आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन, दैट इज इलास्ट्रेशन 4.61. Again, page number 117. Now the question says, who was working with X Limited, died on 30th November 2021 in an accident while going back from office. His emoluments before death were as under: basic salary 30,000 per month with effect from 1/1/2021. DA 100% of basic, 20% DA forming part of retirement benefits. HRA 18,000 per month. He paid 6,000 per month as rent. Children education allowance 260 per month per child for 2 children. He contributed 10% of his salary for PF, to which his employer contributes equally. तो मतलब एम्प्लॉयर भी 10% करता है और एम्प्लॉई भी 10% करता है. On his death, his account of salary and allowance was settled till 30th November 2021. जिस दिन मरा उसी दिन हमने सेटल कर दिया. Besides, his widow received the following emoluments: ग्रेचुटी फॉर 12 years 5 months सर्विस, मतलब 12 years 5 months का सर्विस था और उसे ग्रेचुटी रिसीव हुआ 2,52,000 का, राइट। ही ऑल्सो रिसीव्ड फैमिली पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/12/2021. नाउ प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी अदर सोर्सेज नहीं पढ़ा है, विद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी फैमिली पेंशन का अमाउंट होता है, आई रिपीट माई सेल्फ, जो भी फैमिली पेंशन का अमाउंट होता है ना, ये अमाउंट जो होता है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिस इज़ एन इनकम चार्ज अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. आई रिपीट माई सेल्फ, दिस इज़ एन इनकम चार्ज फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट. इसीलिए हम यहाँ पर अमाउंट को अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे, ठीक है. आप चाहो तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक प्रोविज़न लिखवा देता हूँ, राइट, इन रिलेशन टू फैमिली पेंशन. आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, in relation to family pension. In case of death of an employee, the widow or family members of certain class of companies like armed forces receive family pension from the employer. Such income is taxable in the hands of the person receiving. मतलब जिसके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो रहा है उसी के इनकम में इसको ऐड करेंगे. Such income will be income from other sources. If you remember, हम लोगों ने पढ़ा था that अगर मुझे अनकम्यूटेड पेंशन मिलती है तो
हम उसे सैलरी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे को इनकम मिलती है इसे हम कहाँ लिखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, सच इनकम इज डिडक्टेबल to an amount of 1/3 or 15,000, whichever is lower। मतलब 1/3 ऑफ द सच पेंशन, 1/3 ऑफ सच पेंशन और 15,000, जो भी कम है उतना अमाउंट यहाँ पे हमारा डिडक्टेबल होता है। राइट, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, can you scroll up a little? या आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा नोट और ध्यान रखना है, सच डिडक्शन ऑफ फैमिली पेंशन is not available if the assessee has opted for 115 BAC। तो ये जो हमारी डिडक्शन है फैमिली पेंशन की, ये हमें नहीं मिलेगी। द एंटायर अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन विल बी टैक्सेबल विदाउट एनी डिडक्शन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट में है। चलिए मूविंग ऑन, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन 4.61। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉई जो है वो मर चुका है, ठीक है, द एम्प्लॉई मतलब द पर्सन हैज़ डाइड, राइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल कॉम्प्यूटेशन ऑफ द असेसी, राइट। जो भी अमाउंट इसे मिल रहा है, जो भी अमाउंट इसे रिसीव हो रहा है, राइट, जैसे कि ग्रेचुटी का अमाउंट, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, जैसे कि कोई और अमाउंट, जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि दिस अमाउंट इज़ रिसीव्ड बाय द विडोअर ऑफ मिस्टर ए, दैट इज़ मिसेज ए। मिस्टर ए को नहीं मिल रहा है। तो जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे अंडर द इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, तो हम सैलरी जो है वो केवल कैलकुलेट करेंगे फॉर 1 अप्रैल 21 टू 30th नवंबर 21। और जो भी ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हमें जो डेथ के वजह से उसको आइटम मिला है, वो इनकम जो है वो हम मिसेस ए की इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप छोटा सा, आपसे पूछा भी हुआ है क्वेश्चन में, विल ए बी लायबल फॉर इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23? If so, compute his total income. State who will be liable to file return of Mr. A of income of A
Also compute the total income of Mrs. A assuming she has no other income in the previous year. Assume A does not opt for to be taxed under 115 BAC and opts to be taxed under 115 BAC. तो आप देख सकते हो मैं पहले इनके थ्योरी क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ. Yes, Mr. A will be liable to file income tax return, right, for the assessment year 2022-23. Such income tax return will be filed by the legal representative of Mr. A in the given case. It is Mrs. A. Right? In the given case, Mrs. A. The legal representative of Mr. A will file two returns, one of herself and another on behalf of Mr. A. Such return should be filed along with death certificate of Mr. A as it will be his final return. So basically assessment year 22-23 की जो return होगी ये Mr. A की last return होगी because since he has died in this particular year. तो जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनकी वाइफ हो सकती है, उनका बेटा हो सकता है, उनकी फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट, जो उनका राइटफुल ओनर होगा उनकी प्रॉपर्टी का. तो ही विल बी बेसिकली फाइलिंग अप द रिटर्न. तो जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, द राइटफुल ओनर, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो दो रिटर्न फाइल करेंगे. एक तो खुद की रिटर्न फाइल करेंगे, उसके साथ साथ उन्हें लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए बन के भी एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. इस रिटर्न के साथ में उन्हें डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्योंकि ये इनकी फाइनल रिटर्न है जिससे कि उनका असेसमेंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा फॉर एवर. आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अ बेसिक थ्योरी क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. नाउ दिस थ्योरी क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर. दिस थ्योरी क्वेश्चन इज फ्रॉम असेसमेंट चैप्टर. कि इनकम रिटर्न ऑफ इनकम वाला जो चैप्टर है उससे उन्होंने देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट पूछ लिया है. ठीक है, तो दिस इज हाउ दे कैन मर्ज अप क्वेश्चंस, राइट. सेकंड आपसे पार्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको बोला है स्टेट हु विल बी लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. ये भी हमने आंसर कर दिया दैट मिसेस ए विल बी लायबल टू फाइल द रिटर्न, राइट. मुझे मिस्टर ए एंड मिसेस ए की इनकम कैलकुलेट करनी है जो मुझे यहाँ पे आंसर देना है. तो आई होप आई एम क्लियर. लेट्स स्टार्ट विद द computation of total income. पहले हम करते हैं ऑफ मिस्टर ए, है ना, फिर मिसेस ए का करेंगे. ठीक है, असेसमेंट ईयर 22-23. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल इनकम इसलिए लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल इनकम ही निकालने को बोला गया है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द पार्ट ऑप्टेड फॉर एंड नॉट ऑप्टेड फॉर. ये तो हमारे लिए सेम है ना, जो हम अभी तक सॉल्व करते आए हैं. आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन में मुझे बेसिक सैलरी गिवन है. बेसिक सैलरी कितनी है सर? बेसिक सैलरी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 30,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर. इट्स गोइंग टू बी 8 months, so that is going to be 2,40,000.
सर मेरा DA क्या है, 100% ऑफ बेसिक सैलरी है ना, 100% ऑफ बेसिक सैलरी. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2,40,000, जिसमें से बताया 20% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. सर इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ हमें बताई है HRA. सो द नेक्स्ट थिंग गिवन टू अस इज HRA. HRA के केस में कि मैं यहाँ पे ही कैलकुलेशन, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ. सर मेरा एक्चुअल अमाउंट है, सर मेरा यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट है कितना HRA देना है उसे, सॉरी 18,000 पर मंथ. 18,000 इंटू 8 दैट इज़ 1,44,000, राइट. इसमें से हम एग्जेम्प्टेड माइनस कर देंगे. एग्जेम्प्टेड में देख लीजिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सर इट्स गोइंग टू बी 1,44,000. सर सेकेंड में आ जाएगा रेंट माइनस 10% सैलरी. सर इट्स गोइंग टू बी, उसने रेंट कितना पे किया है, उसने 6,000 पर मंथ का रेंट पे किया है. 6,000 इंटू 8 दैट इज़ 48,000 और माइनस 10%, 2,40,000 प्लस 20%, 28,800, राइट. नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे सिटी क्वेश्चन में दे रखी है क्या, A who was working X Limited. मुझे क्वेश्चन में क्या सिटी कहीं पे दे रखी है क्या, मुझे सिटी कहीं पे भी नहीं दे रखी, तो मैं यहाँ पे 40% ले सकता हूँ एग्जाम्पशन, बेसिक एग्जाम्पशन, विच इज़ गोइंग टू बी 115,200. अगर आप देख सकते हो इस केस में मेरे लिए लोवेस्ट होने वाला है ये वाला फिगर, दैट इज़ गोइंग टू बी 48,000 माइनस 28,800, दैट इज़ गोइंग टू बी 19,200. सो आप देख सकते हो मेरे लिए HRA ऑप्टेड फॉर में हो जाएगी 1,44,000 और यहाँ पर हो जाएगी 1,24,800, नॉट ऑप्टेड फॉर. आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर आई एम सॉरी बट हम लोग 45% किसका लेते थे? बेटा 40% ऑफ बेस ऑफ सैलरी है ना, तो यहाँ पर मेरे लिए सैलरी कंप्यूट हुई थी. सैलरी क्या कंप्यूट हुई है, 2,40,000 प्लस 20% ऑफ DA, दैट इज़ 2,40,000 का 20%, दैट इज़ 48,000. ठीक है ना. फॉर HRA माई सैलरी वॉज 2,88,000. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. देन देर इज़ अ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. We have a children education allowance of 260 into 8 into 2. 260 into 8 into 2, that gives you 4160 in the first case, right. And यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, एग्जाम्प्ट अमाउंट आ जाएगा मेरे पास 100 into 8 into 2, that's going to be 1600. So 4160 minus 1600, that's going to be 2560. आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. अगर आप देखेंगे इसके अलावा हमें और कुछ मेंशन नहीं है. इसके अलावा अब हम, इसकी डेथ हो गई थी है ना, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन, उसको बहुत सारा कॉम्पनसेशन मिला था. सर जो भी डेथ के केस में कॉम्पनसेशन मिला था वो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा, वो मिसेस A के हैंड्स में टैक्सेबल होगा. तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसकी सैलरी हो जाएगी, कुछ छूटा है क्या उससे, 2,40,000, 124,800, then 2560, that's going to be 607. $607,360. Next is going to be 240, 240, 144, 4160, 628, 160. सर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डिडक्शन मिल जाएगा. कितना डिडक्शन मिलेगा, कौन से सेक्शन के अंडर मिलेगा, अंडर सेक्शन 16, विच यू नीड टू रिमेंबर, right. And what is the amount of deduction that I am going to get? I am going to get the standard deduction
यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे 50,000 का रिडक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 628,160, यहाँ पर आ जाएगा 607, 360 minus 50,000, that's going to be 557, 360, right? This is my income from salaries, right? आप देख सकते हो इनकी कोई और इनकम तो है नहीं, राइट? तो यही मेरे लिए यहाँ पर इनकी टोटल इनकम बन जाएगी, राइट? यही मेरे लिए यहाँ पर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी, राइट? यही मेरे लिए इनकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। तो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो मेरे लिए हो जाएगी 628,160, 557,360। सर मैंने ये कैलकुलेशन क्यों किया? बिकॉज अगर आपको याद होगा यहाँ पे उनका 10% का कंट्रीब्यूशन था ना, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर मुझे डिडक्शन मिलने वाला है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। सर कितना प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है? 2,88,000 का 10%, सो 28,800 विल बी डिडक्टेबल। यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज़ गोइंग टू बी माई टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। यहाँ पर तो 6,28,160 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 557,360 minus 288,000, that's going to be 528,560. आई होप यहाँ तक क्लियर है। जल्दी बता दीजिए कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए, इट शुड बी वेरी क्लियर, राइट? I am moving on to the calculation of total income of Mrs. A now. Okay, now I am moving on to computation of total income of Mrs. A. Assessment year 22-23। बेटा इनको जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी ये इनकम मिलेगा, ये इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से ही मिलेगा, है ना? क्योंकि ये कोई सैलरीड एम्प्लॉय तो थी नहीं मिसेज ए। इनको ये जो भी एमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, दीज आर ऑल दीज एमोल्यूमेंट्स विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है सर, यहाँ पर भी हम वही दो केसेस बनाएंगे, ऑप्टेड एंड नॉट ऑप्टेड। अगर आप देखेंगे पहला अमॉल्यूमेंट जो उन्हें मिला है प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, है ना? प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, है ना? यही मिला है इन्हें 7,20,000। सर ये जो अमाउंट है ये हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, दिस इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। सर क्यों? क्योंकि ये रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है बेटा, और रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका हमें जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो वो अमाउंट हमारे लिए टोटली एग्जेम्प्ट होता है। सर ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी में वी हैव रिसीव 2,52,000 रुपीज़। एज यू कैन सी वी हैव रिसीव 2,52,000 रुपीज़। एंड आप देख सकते हैं मेरे लिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट होने वाला है। हम यहाँ पे एग्जाम्पशन लेने वाले हैं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, नोट लिखना चाहें आप लिख लीजिए, एज्यूमिंग मिस्टर ए इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। तो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन क्वाइट सिंपल है। पहला है 20 लाख द मॉनेटरी लिमिट, सेकेंड लिमिट है 2,52,000, थर्ड लिमिट है 1/2 not 15, 1/2 into the number of years of service, that is 12 years in this case, right? Then what else have we received? Sir 10 months average salary। तो अगर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 10 months की एवरेज सैलरी निकालता हूँ तो पिछले 10 महीने की उनकी एवरेज सैलरी कितनी निकल आएगी? क्योंकि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/21 है तो उनकी एवरेज सैलरी 30,000 ही रहने वाली है।
है ना, तो उनकी सैलरी जो है वो 30,000 ही रहने वाली है, 36,000 है ना। उनकी एवरेज सैलरी कितने आने वाली है, उनकी हाफ मंथ की एवरेज सैलरी कितनी आने वाली है सर, 30,000 प्लस 20%, so that's going to be 36,000. राइट, मैंने बस इसे कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे 1/12 नहीं होगा, 1/2 होगा, सॉरी। So this is going to be 36,000 into 12 into divide by 2. So this comes out to be 216. तो आप देख सकते हो मेरे लिए इन तीनों में से लीस्ट भी है 216, तो आप देख सकते हो मेरे लिए यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट होने वाला है 36,000 इन बोथ द केसेस। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बता दीजिए ग्रेच्युटी का अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट किया, राइट। सर ग्रेच्युटी के बाद अगर आप देखेंगे उन्हें मिला है फैमिली पेंशन। देख लीजिए फैमिली पेंशन के केस में हमें कितना मिला है सर, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 12,000 इंटू 4, तो 48,000 विल बी दी अमाउंट। सर ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा इफ़ ही हैज़ ऑप्टेड फॉर 115 BAC, लेकिन यहाँ पे हमें डिडक्शन मिल जाएगा 15,000 और 1/3, तो यहाँ पर हमें 1/3, हमें यहाँ पे 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। राइट, अगर आप देखेंगे 16,000 आ रहा है ना 1/3, तो यहाँ पर 15,000 ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 33,000। सर नेक्स्ट अमॉल्यूमेंट जो मुझे मिला है वो मिला है लीव एनकैशमेंट। बेटा लीव एनकैशमेंट भी हमारा यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है एट द टाइम ऑफ, जब हमें डेथ के टाइम पे लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिलता है, राइट, इट इज़ एग्जेम्प्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बता दें यहाँ तक। हमें बस यहाँ का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 69,000 and this is going to be 36,000 plus 48,000, 84,000. So this is going to be the total income of Mrs. A. अब अगर मिसेज ए की कोई और इनकम होती तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करके अकॉर्डिंगली अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। जल्दी बता दीजिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस मेहर, रिद्धि, आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अयान, नो सर। राइट, चलिए सो आज हम इतना ही रख रहे हैं, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास दैट्स टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट अप दिस चैप्टर। मेरे ख्याल से 2 illustrations रह गए हैं, दैट इज़ 4.62 and 63, which we'll discuss in tomorrow's class, and I guess we are going to end this chapter. सर इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द बैक क्वेश्चंस। अगर आप देखोगे देर आर selected case study problems given to you at the end of the chapter, if you can see at the end of the book के बिल्कुल एंड में, राइट। अगर आप आएंगे पेज नंबर, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर सैलरी, यस, अगर आप आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3, तो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे कैसे पहुंच गया? 18, अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हुआ है। कम टू पेज नंबर 508 ऑफ योर बुक, राइट। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 508 पर आएंगे, राइट, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपके एक बुक एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनको इन्होंने लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से सॉल्व किया है, राइट।
तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 क्लासेस इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में भी आपको लगाऊंगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करेंगे. फॉर द चैप्टर सैलरी आई विल बी मेकिंग यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड नेक्स्ट हम फिर मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी. So most probably today is Tuesday. So most probably in this week we'll be doing salary. शायद हमारा फ्राइडे से हम मोस्ट प्रॉब्ली हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे, राइट. सो लेट्स होप. आई थिंक सो 2 more classes we might be requiring for salary and then we'll be finally done. Sir, we start with PPP. We are going to start with house property first. House property is a smaller chapter, है ना. And then PGBP we'll be doing after, that will be the last head of income for us that we'll be discussing in the class. Okay. ठीक है ना. It's PGBP, a very long chapter, so I'm just I worried know that it's a long chapter, but actually में क्या होता है ना, PGBP there is no guarantee in your paper that PGBP से question आएगा. There is no guarantee in your paper. ठीक है ना. Sometimes the examiners give papers from questions from PGBP. Sometimes the examiner doesn't give questions from PGBP. So वो बड़ा डाउटफुल चैप्टर है, तो इसीलिए मैं वो डाउटफुल चैप्टर थोड़ा इनमें कराता हूँ. पहले मैं कंपल्स जो हमें पता है ना कंफर्म चैप्टर्स जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, मैं पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट कराता हूँ. दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, है ना, अदर सोर्सेज. इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, राइट. तो इसीलिए मैं पहले इनसे क्वेश्चंस इनको कवर कराता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में आई कवर PGBP, राइट. चलो ठीक है. देन आई विल सी यू गाइज टुमारो 7 o'clock. आई होप द टॉपिक इज क्लियर. thank you, sir. ओके. Thank you, sir.